You are the only participant in the conference. Recording did not stop because your storage is full. Please log in and delete recordings or purchase more storage from your account. All participants are muted, and they can unmute themselves. ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सव्वसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु कहानो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रहो। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। आचार्य भगवान ने मांगलिक करके समयसार को कहने की प्रतिज्ञा की है। समयसार का अर्थ है अनंत शक्ति का पिंड, ऐसा ज्ञायक जिसका अवलंबन लेने से अज्ञानमयी भाव का नाश होकर सम्यक ज्ञान की प्रकटता होती है। आचार्य भगवान अनंत शक्ति का पिंड, ऐसा ज्ञायक, उसका स्वरूप समझाकर उसका अवलंबन लेने की विधि और रीत बताकर जीवों को सम्यक ज्ञान प्रकट कराना चाहते हैं। ऐसे समयसार शास्त्र में दूसरा अधिकार कर्ता कर्म अधिकार चलता है। कर्ता कर्म अधिकार में आचार्य भगवान अज्ञानमयी भावों से नया द्रव्य कर्म का बंध होता है। ये बात गाथा 132 से 136 में दिखाना चाहते हैं। गाथा 132 से 136 उसका गाथार्थ चलता है।
गाथार्थ में कल विषय चला था जीव द्रव्य और जीव तत्व किसको कहे। ये बात हिंदी में चली थी, आज गुजराती में। छ द्रव्य में एक जीव नामनु द्रव्य है અને 7 તત્વમાં 9 પદાર્થમાં એક જીવ નામનું તત્વ છે। જીવ દ્રવ્ય અને જીવ તત્વ બંને વચ્ચે શું અંતર છે, બંને વચ્ચે શું તફાવત છે? तो के द्रव्य कोने कहेवाय? तो के द्रव्यनु लक्षण सत छे। ए सत केवुं छे? तो के ए सत द्रव्य गुण पर्यायमय छे। ए सत उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक छे। द्रव्यनु स्वरूप द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद व्यय द्रव्य एनाथी वर्णन करवामां आवे तो ए द्रव्यनु वर्णन कहेवाय। तो जीव द्रव्यनु वर्णन करवुं होय तो जीव द्रव्यना अनंत गुणों अने जीव द्रव्यनी अनादिथी अनंत काळनी पर्याय एवं वर्णन करवुं अथवा जीव द्रव्य स्वतंत्रपणे पोतानी पूर्व पर्यायने त्यागे छे, उत्तर पर्यायने प्रगट करे छे अने द्रव्य स्वभावने त्रिकाळ टकावे छे। एवं वर्णन ए जीव द्रव्यनु वर्णन छे। पण जीव तत्व क्यो? तो जीव तत्व उद्गलना संयोग थी उत्पन्न थता परिणाम। जीव तत्व एटले पंचास्तिकाय शास्त्र छे। ए पंचास्तिकाय शास्त्र बे अधिकार लीधा छे। एक लीधुं छे षट द्रव्य पंचास्तिकाय वर्णन। त्यां जीव द्रव्यनुं वर्णन कर्युं छे।
કઈ રીતે કર્યું છે? તો કે ષટ દ્રવ્ય પંચાસ્તિકાય વર્ણનમાં પ્રથમ ષટ દ્રવ્ય પંચાસ્તિકાય સામાન્ય વર્ણન કર્યું છે, એટલે કે 6 દ્રવ્યને લાગુ પડતા સિદ્ધાંતથી વર્ણન કર્યું છે. ત્યાં જીવ પેલા દ્રવ્યની વ્યાખ્યા શું કરી? તો કે દ્રવ્ય એટલે એનું લક્ષણ સત છે. એ સત કેવું છે? તો કે દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય અને ઉત્પાદ વ્યય દ્રવ્યાત્મક. તો દ્રવ્યનું લક્ષણ સત 6 દ્રવ્યને લાગુ પડતો સિદ્ધાંત છે. માટે જીવ દ્રવ્ય કોને કહે? તો કે જીવ દ્રવ્ય પણ સત છે. જીવ દ્રવ્ય કેવું છે? તો કે દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય મય અને ઉત્પાદ વ્યય દ્રવ્યાત્મક છે. તો જીવ દ્રવ્યના સ્વભાવથી વર્ણન કરવું, એના અનંત ગુણોથી વર્ણન કરવું અને એની વર્તમાન વર્તી પર્યાયથી વર્ણન સ્વતંત્રપણે કરવું, તેમજ જીવ દ્રવ્ય પોતાની સ્વશક્તિથી પૂર્વ પર્યાયને ત્યાગે, ઉત્તર પર્યાયને પ્રગટ કરે અને દ્રવ્ય સ્વભાવને ટકાવે. એ વર્ણન જીવ દ્રવ્યનું છે. તો કે જીવ તત્વનું વર્ણન કરવું એટલે શું? તો પંચાસ્તિકાયમાં બીજો અધિકાર લીધો છે. ત્યાં 7 તત્વ 9 પદાર્થનું વર્ણન કર્યું છે. 7 તત્વ 9 પદાર્થનું વર્ણન કર્યું છે. એમાં ગાથા 128, 129, 130 3 ગાથા સાથે લીધી છે. એ 3 ગાથા સાથે લીધી છે. એનું હેડિંગ છે કે જીવ અને પૂતગલના સંયોગથી 7 તત્વ અને 9 પદાર્થ એની ઉત્પત્તિ થાય છે. તો જીવ તત્વ કોને કહેવું? તો કે જીવ તત્વ ક્યારે ઉત્પન્ન થાય? તો કે જીવ અને પૂતગલનો સંયોગ થાય ત્યારે. તો પૂતગલમાં શું લેવું? તો કે કર્મના ઉદયો. તો જીવ અને કર્મનો ઉદય એનો સંયોગ થાય ત્યારે કર્મના સંયોગે ઉત્પન્ન થતા જીવના પરિણામ એને જીવ તત્વ કહેવાય. પંચાસ્તિકાયમાં
જીવ તત્વનું વર્ણન કરતા સમયે એમ કીધું કે જીવના બે પ્રકાર છે, સંસારી જીવ અને સિદ્ધ જીવ. સંસારી જીવ કોને કીધો? તો કે કર્મ સહિત છે એ સંસારી જીવ છે, અને કર્મ રહિત છે તે સિદ્ધ જીવ છે. તો સંસારી જીવ એ વર્ણન તો જીવ તત્વનું છે. કેમ? તો સંસારી જીવ એટલે ગતિ નામ કર્મનો ઉદય અને આયુ નામ કર્મનો ઉદયથી શરીર મળે છે. ગતિ નામ કર્મના ઉદયમાં અને શરીર અને જીવ બંધાય છે આયુ કર્મના ઉદયમાં. તો ત્યાં જીવ તત્વનું વર્ણન ગતિ નામ કર્મનો ઉદય અને આયુ નામ કર્મના ઉદયથી એકેન્દ્રીયપણું, બેઇન્દ્રિયપણું, ત્રણેન્દ્રિયપણું, ચારેન્દ્રિયપણું, પંચેન્દ્રિય સંજ્ઞીપણું, તિર્યંચપણું, નારકીપણું, મનુષ્યપણું, દેવપણું મળે છે. અને ત્યાં સંસાર ચક્ર કઈ રીતે ઉત્પન્ન થાય છે? તો કે કર્મના ઉદયમાં જીવ જોડાણો, તો મોહ રાગ દ્વેષની ઉત્પત્તિ થઈ. મોહ રાગ દ્વેષની ઉત્પત્તિના ફળમાં દ્રવ્ય કર્મ બંધાણા. દ્રવ્ય કર્મના ફળમાં ચાર ગતિની ઉત્પત્તિ થઈ. ચાર ગતિની ઉત્પત્તિમાં શરીર સંયોગ રૂપે મળ્યું. શરીર મળતા પાંચ ઇન્દ્રિય અને મન સાથે મળ્યું, અને પાંચ ઇન્દ્રિયને મન મળતા પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયો એમાં જીવ જોડાવા ગયો. અને પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયમાં જોડાતા જીવને ફરી મોહ રાગ દ્વેષની ઉત્પત્તિ થઈ. મોહ રાગ દ્વેષની ઉત્પત્તિ થતા પાછું બીજું ચક્ર શરૂ થયું. મોહ રાગ દ્વેષની ઉત્પત્તિ થતા એના ફળમાં દ્રવ્ય કર્મ બંધાણા. દ્રવ્ય કર્મ બંધાણા એના ફળમાં ચાર ગતિ મળી. ચાર ગતિ મળતા
शरीर मळ्યું। शरीर મળતા 5 ઇન્દ્રિય અને દ્રવ્ય મન મળ્યું। 5 ઇન્દ્રિય ને દ્રવ્ય મન મળતા 5 ઇન્દ્રિયના વિષયમાં જોડાવા ગયો। એટલે પાછું બીજું ચક્ર પૂરું કર્યું, પાછું ત્રીજું શરૂ થયું। આવું ચક્ર આપણને અજ્ઞાનીઓને અનાદિકાળથી ચાલે છે। તો જીવના કર્મ સાપેક્ષ પરિણામ, જીવના કર્મ સંયોગમાં ઉત્પન્ન થતા પરિણામ, એને જીવ તત્વ કેવું છે। હવે ગાથાર્થ શરૂ કરીએ છીએ। जीवों को, राजू भाई थैंक यू। हाँ, जीवों को जो तत्व का अज्ञान, तत्व यानी वस्तु स्वरूप का अयथार्थ ज्ञान, वस्तु स्वरूप का विपरीत ज्ञान। अज्ञान क्या है? जीव और शरीर दो पदार्थ होने पर भी उसको एक पदार्थ मानना, एक पदार्थ जानना। तो एक पदार्थ जानना वो अज्ञान है। स्वभाव विभाव भिन्न भिन्न होने पर भी स्वभाव विभाव को एक में जानना वो अज्ञान है। जीव तत्व को अजीव तत्व मानना या जानना, तो जीव तत्व को अजीव तत्व जानना वो भी अज्ञान है। अजीव तत्व को जीव तत्व जानना वो भी अज्ञान है। जैसे कि अज्ञानियों के अभिप्राय में ऐसा है कि 5 इंद्रिय जानने का कार्य करती है। तो 5 इंद्रिय तो अचेतन जड़ है, उसमें ज्ञान गुण तो है नहीं, उसमें ज्ञान गुण का परिणाम भी है नहीं। तो 5 इंद्रिया अजीव है, उसको जीव माना। शरीर को चेतनवंत मानता है। तेरे शरीर में चेतन चला गया है, कुछ अच्छा खा पी, कुछ शक्ति की गोली ले, तो शरीर में चेतन कहाँ है? चेतन शरीर का स्वभाव कहाँ है? शरीर को चेतनवंत मानना, शरीर तो अचेतन है, उद्गल है, अजीव है, उसको जीव माना, तो ये अज्ञान है। जीव शरीर की भिन्नता होने पर भी
भिन्नता का भान नहीं करना अज्ञान है। स्वभाव विभाव भिन्न है, उसकी भिन्नता का भान नहीं करना वो अज्ञान है। अब आगे कहते हैं, जीवों के ये तत्व का अज्ञान अर्थात वस्तु स्वरूप, वस्तु स्वरूप का अर्थ है वस्तु का स्वस्वभाव, उसका विपरीत ज्ञान, उसको अज्ञान कहने में आता है। ये अज्ञान के उदय में और जीव को क्या है, मिथ्यात्व कर्म का उदय है। तब क्या होता है, उसके पहले एक बात रह गई, बता दूं कि जो पहले बताया ना कि अज्ञान यानी विपरीत ज्ञान, अयथार्थ ज्ञान, अयथार्थ ज्ञान कब होता है, तो कि अज्ञान कर्म के उदय में विपरीत ज्ञान होता है। यहाँ तक बात की अज्ञान की। अब अश्रद्धान की बात बताते हैं। देखो, और जीव को जो तत्व का अश्रद्धान है, अश्रद्धान किसको कहे, तो कि आत्म स्वभाव, जीव का स्वभाव त्रिकाल परिपूर्ण शुद्ध है, उसको प्रतीत में नहीं लिया। तो आत्मा के शुद्ध स्वभाव की प्रतीति नहीं करना वो अश्रद्धान है। दूसरा, आत्मा स्वभाव से चेतनवंत है, उसकी प्रतीति करना चाहिए, उसके बदले में वो प्रतीति करता है कि मैं मनुष्य हूँ, मैं तिर्यंज हूँ, मैं नारकी हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ। तो असमान जाति द्रव्य पर्याय की प्रतीति करना वो तो अश्रद्धान है, वो तो मिथ्यात्व है। दो तत्व होने पर भी, जीव शरीर दो तत्व, भिन्न भिन्न तत्व होने पर भी एक तत्व समझकर उसका श्रद्धान करना वो अश्रद्धान है। ये अश्रद्धान क्यों उत्पन्न हुआ, तो कि मिथ्यात्व का उदय है। मिथ्यात्व का उदय है, उसका अर्थ क्या, मिथ्यात्व कर्म का उदय है। अज्ञान का उदय है, उसका अर्थ क्या, अज्ञान कर्म का उदय है।
अब आगे दो बात हुई, एक अज्ञान की, दूसरा मिथ्यात्व की। मिथ्यात्व उत्पन्न किसमें से हुआ? अज्ञान में से। अज्ञान में से मिथ्यात्व उत्पन्न हुआ, इसलिए मिथ्यात्व को क्या कहा? तो क्या मिथ्यात्व को भी अज्ञानमय भाव कहने में आता है। पहले बताया था कि अज्ञान में से कौन सा भाव उत्पन्न होता है? तो बताया था कि 4 भाव उत्पन्न होता है। एक मिथ्यात्व, दूसरा अविरति, तीसरा कसाय, चौथा योग। ये चारों भाव अज्ञानमय भाव है। चारों भाव को अज्ञानमय क्यों कहा? तो क्या अज्ञान में से उत्पन्न हुआ इसलिए। अज्ञान क्या था? तो कि वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं किया। मैं जीव हूं कि मैं शरीर हूं, उसका यथार्थ ज्ञान नहीं किया। बाद में मनुष्यपना में हूँपना किया तो मिथ्यात्व खड़ा हो गया। जीव शरीर की भिन्नता का भान नहीं किया तो अज्ञान हुआ था। तो अज्ञान के साथ साथ श्रद्धा गुण का परिणाम कैसा होगा? तो कि ज्ञान ने जीव शरीर के भेद को नहीं जाना, उसको एक में एक जाना, उसको 2 तत्व होने पर भी एक तत्व जाना, 2 पदार्थ होने पर भी एक पदार्थ जाना। तब श्रद्धा ने भी एक पदार्थ में हूँपना किया था, तो 2 पदार्थ। तो उसका श्रद्धान भी विपरीत हो गया। तो देखो, जो तत्व का अश्रद्धान है तत्व का जैसा स्वरूप है वैसा स्वरूप नहीं मानना, उसको अश्रद्धान कहते हैं। जो तत्व का अश्रद्धान है वो मिथ्यात्व का उदय है। और जीवों को जो अविरमण अर्थात अत्याग भाव है, अविरमण उसका दूसरा नाम है अविरति।
अविरति का अर्थ है अत्याग। कसाई को कम करने के लिए त्याग का भाव, कितना त्याग? तो क्या आंशिक त्याग। आंशिक त्याग किसका? तो क्या आंशिक त्याग 5 प्रकार के पाप, पांच पाप का अत्याग। पांच पाप कौन सा? तो कि हिंसा, चोरी, झूठ, अब्रह्मचर्य, परिग्रह, 5 पाप है। जो 5 पाप होता है उसका पहले आंशिक त्याग होता है। आंशिक त्याग का अर्थ क्या करे? तो कि हिंसा का आंशिक त्याग, उसका अर्थ क्या? तो कि हिंसा का आंशिक त्याग, उसका अर्थ है हिंसा 2 प्रकार की है। एक त्रस्त जीव की हिंसा, दूसरी स्थावर जीव की हिंसा। त्रस्त जीव की हिंसा है, उसमें ज्यादा पाप है। स्थावर जीव की हिंसा है, उसमें कम पाप है। तो जैन धर्म में त्याग कहाँ से बताया है? तो कि सबसे बड़ा पाप जो हो उसका प्रथम त्याग होता है। जैसे कि सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व है, तो प्रथम सम्यक दर्शन होता है, तब किसका नाश होता है? तो कि मिथ्यात्व का नाश होता है। कसाई में सबसे बड़ा पाप कौन से कसाई में है? तो कि अनंत अनुबंधी में। तो सबसे प्रथम कसाई कौन सा जाता है? तो कि अनंत अनुबंधी। वैसी तरह हिंसा, उसका प्रकार 2, त्रस्त जीवों की हिंसा, स्थावर जीव की हिंसा। तो त्रस्त और स्थावर जीव है, उसमें प्रथम त्याग किसका होगा? तो कि 2 में से बड़ा पाप कौन से में है? तो कि त्रस्त जीव की हिंसा में। तो पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक जब अणुव्रत लेते हैं तब आंशिक व्रत का नियम लेते हैं, तब आंशिक त्याग जो करते हैं तो उसमें अहिंसा व्रत
अणु अहिंसा व्रत। अणु का अर्थ है आंशिक, अहिंसा यानी हिंसा का त्याग, ऐसा व्रत। तो श्रावक पंचम गुणस्थान में त्रस्त जीवों का हिंसा मेरे निमित्त से नहीं होगी, ऐसा नियम लेना, प्रतिज्ञा लेना, उसको आंशिक त्याग कहने में आता है। ऐसे आंशिक त्याग का अभाव उसको अविरमण भाव कहने में आता है। वो असंयम है, मन वचन काया उसकी जागृति का अभाव होने से त्रस्त और जीवों की हिंसा होती है। असंयम यानी वो मिथ्या चरित्र है। ये उत्पन्न कब होता है? तो कि असंयम कर्म का उदय में जुड़ने से जीव की दशा में त्याग का भाव दिखने में आता नहीं है। अब आगे, और जीवों को जो मलिन अर्थात मलिन किसको कहते हैं? तो कि मलिन का अर्थ है राग द्वेष युक्त, ज्ञान उपयोग राग द्वेष से रंगा हुआ, उसको मलिन उपयोग कहते हैं। तो जीवों को जो मलिन यानी राग द्वेष की उत्पत्ति तो मलिन उपयोग है, उसका अर्थ राग द्वेष युक्त उपयोग है, वो कसाई का उदय है, कसाई कर्म का उदय। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ आदि कसाई कर्म है। देखो, गुरुदेव एक दृष्टांत देते थे कि प्रथम घड़ा उल्टा रखो तो उस पर हर घड़ा उल्टा रखना पड़ेगा। तो देखो, आपका ज्ञान उत्पन्न हुआ और अज्ञान रूप परिणमित हुआ, तो ज्ञान उल्टा हुआ, तो उसके ऊपर श्रद्धा वो भी विपरीत, चारित्र भी विपरीत और योग का कंपन भी विपरीत। तो अज्ञान में से विपरीत श्रद्धा उत्पन्न हुआ
त्याग का भाव उत्पन्न नहीं हुआ, मलिनता यानी कसाई की उत्पत्ति हुई, योग का कंपन हुआ। तो पहले अज्ञान का स्वरूप बताया, उसके बाद अश्रद्धान का स्वरूप बताया, उसके बाद अत्याग भाव बताया यानी अविरमण बताया, उसके बाद कसाई बताया। अब योग की बात बताएंगे, देखो आगे। और जीवों को जो शुभ या अशुभ प्रवृत्ति के निवृत्ति रूप मन वचन काया आश्रित चेष्टा का उत्साह है, वो योग का उदय जान। माता जी की सम्यक जयंती हो या गुरुदेव की जन्म जयंती हो या पंचकल्याणक हो या वेदी प्रतिष्ठा हो, उसके महोत्सव मनाने का भाव शुभ भाव, और वो स्वभाव की उत्पत्ति में मन वचन काया उसका अवलंबन लेने से आत्म प्रदेशों का कंपन होना, उसको योग कहने में आता है। योग का कंपन है, उसको आश्रव तत्व कहा है। योग गुण का कंपन है, वो योग गुण की अशुद्ध पर्याय है। योग गुण का कंपन प्रथम गुण स्थान से 13वें गुण स्थान के अंत तक रहता है। योग के कंपन को आश्रव तत्व कहा। वो एक ही तत्व ऐसा है कि प्रथम गुण स्थान से 13 गुण स्थान तक आश्रव तत्व रहता है। तो देखो, जब जीव स्व पर का विवेक खो देता है, स्वभाव विभाव का विवेक खो देता है, तब अज्ञान उत्पन्न होता है। तब आत्मा का स्वरूप विभाव स्वरूप है, ऐसी मान्यता उसको अश्रद्धान यानी मिथ्यात्व कहते हैं। और उस समय विभाव का मैं त्याग करूं,
ऐसा भाव का अभाव वो अत्याग भाव है। और विभाव में ठीकपना लगना और अठीकपना लगना, उससे राग द्वेष की यानी कसाई की उत्पत्ति होती है। तब उपयोग मन वचन काया का आश्रय लेकर आत्म प्रदेशों के कंपन में निमित्त होता है, तो योग का कंपन की उत्पत्ति होती है। ये सब एक समय में एक साथ उत्पन्न होता है। एक समय में एक साथ क्यों उत्पन्न होता है? तो कि जीव के सभी गुण एक साथ है। ज्ञान गुण है, वो अज्ञान रूप परिणमन किया। श्रद्धा गुण ने अश्रद्धा रूप परिणमन किया। चारित्र गुण ने अविरमण और कसाई रूप परिणमन किया। योग गुण ने कंपन रूप परिणमन किया। ये सभी गुण एक साथ अपने अपने स्वभाव से च्युत होकर परिणमन किया। ऐसा जो भाव उत्पन्न हुआ, अज्ञान, अश्रद्धान, असंयम यानी अविरमण और असंयम यानी कसाई और योग, ये सब विकारी परिणाम उसका निमित्त पाकर कार्मण वर्गणा कर्म रूप परिणमन होकर आत्मा के प्रदेशों पर चिटकने के लिए कर्म आते हैं। तो जीव का अज्ञान के कारण उत्पन्न हुए चार परिणाम, मिथ्यात्व, अविरमण, असंयम, कसाई और योग का कंपन, ये सब अशुद्ध भाव है। वो अशुद्ध भाव कार्मण वर्गणा को कर्म रूप परिणमन करने में निमित्त होता है। कार्मण वर्गणा कर्म रूप परिणमन करके नया कर्म की उत्पत्ति करता है और वो नया कर्म आत्म प्रदेश पर चिटकने के लिए आते हैं। तो अज्ञानमयी भाव वो नए कर्म बंधन का हेतु यानी कारण बनता है। तो जीव का कर्म के साथ बंधन होता है। ख्याल में आता है? फिर से गुजराती में गाथा 132 થી 36
એનો મૂળ વિષય શું છે? તો એનો મૂળ વિષય છે કે અજ્ઞાનમાંથી અજ્ઞાનમય ચાર ભાવોની જે ઉત્પત્તિ થાય છે તે ચાર ભાવ નવા કર્મબંધનું કારણ બને છે. એનો અર્થ શું થયો કે જો તું અજ્ઞાનમય પરિણમે તો ચાર ભાવ ઉત્પન્ન થશે. અશ્રદ્ધાન ઉત્પન્ન થશે એટલે કે મિથ્યાત્વ, અવિરમણ યાને અત્યાગનો ભાવ ઉત્પન્ન થશે, કસાય ઉત્પન્ન થશે અને યોગનું કંપન ઉત્પન્ન થશે. આ ઉત્પન્ન થયેલા ચાર ભાવોનું ફળ શું? તો કે આવા ચાર ભાવોને કર્મણ વર્ગના સાથે નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ હોવાથી આ ચાર ભાવનું નિમિત્ત પામીને કર્મણ વર્ગના નવા કર્મરૂપે પરિણમીને આત્માના પ્રદેશે ચીટકવા આવશે. એટલે અજ્ઞાનમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા ચાર ભાવ એના નિમિત્તે તું કર્મની સાથે ઉભય બંધને પ્રાપ્ત થવાનો છો. હવે અજ્ઞાનમાંથી કયા ચાર ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે? તો કે મિથ્યાત્વ. મિથ્યાત્વ શું છે? તો કે આત્મામાં શ્રદ્ધા નામનો ગુણ છે. એનું વિપરીત પરિણમન, અશુદ્ધ પરિણમન એ મિથ્યાત્વ છે. અવિરતિ અને કસાઈ શું છે? તો કે ચારિત્ર ગુણના અશુદ્ધ પરિણામ છે. યોગ શું છે? તો કે યોગ નામનો એક ગુણ છે, બે પ્રકારે પરિણમી શકે, કંપન અને નિષ્કંપ. કંપન કરે એ યોગ ગુણનું અશુદ્ધ પરિણામ છે. તો શ્રદ્ધા ગુણ, પેલું જ્ઞાન ગુણ, પછી શ્રદ્ધા ગુણ, પછી ચારિત્ર ગુણ અને યોગ ગુણ, ચારેય અશુદ્ધતા રૂપ પરિણમે છે. એમાં કારણ કોને બતાવ્યું? તો કે અજ્ઞાન એનું કારણ છે. હવે અજ્ઞાનને કારણે જે આ ચાર પરિણામ થયા એનું ફળ શું? તો કે આ ચાર પરિણામ નવા કર્મ બંધનના નિમિત્ત છે. એના નિમિત્તે નવા કર્મો તારા આત્માના પ્રદેશે બંધાશે. તું ઉભય બંને પ્રાપ્ત થઈશ. સમય થયો છે. કાલે આપણે ગાથા ગુજરાતીમાં લેશું, પછી આગળ ચાલશે.
that will be સારું થશે રાજુભાઈ, જરા સમજતું પાછું. હે નહીં. શું ગુજરાતીમાં તમે લેશો that will be very good. હા 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 ના આપણે ક્યારેક શું છે હું ભૂલી જાઉં છું ગુજરાતીમાં લેવું જોઈએ. હા એટલે કાંઈ એવું થાય એટલે યાદ કરી દેવું એટલે રહી ન જાય. જરાક અટવાઈ જાઉં છું એટલે ગુજરાતી જરા છેલ્લું વધારે પકડે છે. હા 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 થેન્ક યુ. વર્તમાન ચોવીસીના આખરી તીર્થંકર બાલ બ્રહ્મચારી મહાવીર ભગવાનનો જય હો. મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર, ધર્મ ધુરંધર, અનંત ચતુષ્ટયના ધારક, દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર, શાસન ઉપકારી શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો. કડીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાની તળેટીમાં બેઠેલા મા સમર્થ આચાર્ય ભગવત કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો. વર્તમાન કાળે સમ્યક દર્શનનું સ્વરૂપ સમજાવનાર, તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક, પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુ દેવનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવના ભૂત વર્તમાન ભાવિ ભવોનો મહિમા બતાવનાર, સ્વાનુભવયુક્ત જાતિસ્મરણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રશમમૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ સર્વ જીનવાણી માતનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો. સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો. વર્તમાન ગુરુ અને ભવિષ્યના તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. શ્રી સૂર્યકીર્તિનાથ ભગવાનના સમવસરણના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો. થેન્ક યુ રાજુભાઈ. જય જિનેન્દ્ર સર. વેરી મચ રાજુભાઈ, બધાને જય જિનેન્દ્ર. થેન્ક યુ. जय जिनेन्द्र राजू भाई, सभी को जय जिनेन्द्र. જય જિનેન્દ્ર. થેન્ક યુ. Goodbye.